We are extremely delighted to have you all with us in today's program. Now it is our pleasure to welcome our guest of honor, Sanjay sir, MD ma'am. Please everyone, big round of applause for our guest. Welcome to Doon Blossom Academy, a future-making institution of all our children. Thank you sir and ma'am. Now we will commence our event by a lighting of lamp of knowledge and wisdom. Now I would like to invite our today's guest, MD ma'am, management team, respected Sanjay sir and principal ma'am. Ma'am, please come up. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Now we want to call our dancer to perform an inspiration dance of a school Chale Hum. सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो Wow, our students turned our school in dance floors, right? Yes. Now I am thrilled to introduce our Dr. Preeti Badoria ma'am, our respected principal. Good morning once again to all of you. Respected Managing Director ma'am, Ms. Sheetal Agarwal ma'am, Sanjay sir, we all are honored once again to gathered here. जिस सेरेमनी के लिए हम यहाँ गेट टुगेदर हुए हैं, यू विल गेट 100%
and you will feel really honored and happy because DBA is one of the school in entire Gujarat which has initiated with Vedic Vidya Aram ceremony. And this is not my initiative. This is the initiative which is taken by our beloved honored CMD ma'am. उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि जैसे वैदिक काल में सभी फैमिलीज़ के बच्चे गुरुकुल में जाते थे अपनी शिक्षा स्टार्ट करने के लिए, तो ये उनका इनिशिएटिव था. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू गिव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर CMD मैम फॉर गिविंग दिस आइडेंटिटी टू आवर स्कूल. This is the benchmark of DBA because I know many of the parents, they have gone through with many other schools, but I don't think any one of you have gone through with this ceremony. This is not only a gathering, it is a process which we are going to give our children कि हमें शिक्षा का starting कैसे करना चाहिए. शिक्षा is not only for the learning of the books. जैसे मेरे बच्चों ने भी डांस में आपको बताया, it is not about education. It is about the personality development of each and every individual of who is going to survive in the society. So that interaction, that behavior that we are implementing in DBA, and whatever the learning we got from CMD ma'am, it is our MD ma'am Sheetal Agarwal ma'am along with Sanjay sir, the guidance which we are getting to do all these ceremonies in our school. So big a round of applause for MD ma'am and Sanjay sir for guiding us, for nurturing our students and the teachers, for having so many programs like this. Thank you for being here. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, ladies and gentlemen, please join me in a welcoming Sanjay sir, the member of our school management DBA. Today, he gracefully leads to expertise to guide the proceeding of our Vedic Vidya Aram Puja rituals. His wisdom and leadership ensure that we embark on his spiritual journey with reverence and clarity. Let us extend our heartful and gratitude for his presence and guidance. A big round of applause for our Sanjay sir. नमस्कार, जय श्री कृष्ण. आज के इस वैदिक विद्या आरंभ के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड MD मैम, 16 संस्कारों में से एक वैदिक विद्यारंभ को समाज के बीच लाने का जो भगीरथ प्रयास किया है, ऐसे हम सब के चहेते हमारे CMD मैम, वंदनीय मां शारदे को नमन. रेस्पेक्टेड पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, डियर टीचर्स, आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर वैदिक विद्यारंभ है क्या. हमारे जीवन में गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक के संस्कारों का कुल 16 संस्कारों में से एक है वैदिक विद्या आरंभ. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे 16 संस्कार यदि किसी बच्चों के जीवन में जितने प्रतिशत समाविष्ट होते हैं, माता पिता अपने बच्चों को जितने परसेंटेज में उन संस्कारों का बीजारोपण अपने बच्चों में करते हैं या करवा पाते हैं, वह बालक उतने उतने अंश में सक्सेस को प्राप्त होता है. आप लोग, इसमें मैं भी आ गया, हम सभी हमारे घर से जाते हैं छोटे मोटे किसी काम को लेकर के. आप लोग बिजनेस करते होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, सभी जाते हैं तो हम मुहूर्त देखते हैं. तो ये हमारे जीवन का, हमारे बच्चों के लिए जीवन संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पढ़ाई, और इसी के बलबूते पर वो आगे बढ़ेगा. तो आज का दिन बहुत ही शुभ है. और ऐसा नहीं है कि आज स्कूल रीओपनिंग का डे था तो आज अपन ने कोइंसिडेंट ऐसा रख लिया, ऐसा भी नहीं है. हमारे MD मैम, CMD मैम का इस पर बहुत जोरदार फोकस होता है. हमारे पंडित जी को स्पेशली पूछा गया कि वैदिक विद्यारंभ का हमें मुहूर्त निकालवा के दीजिए, तो आज का मुहूर्त निकलवा गया. जो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ था, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आज का यह आपके बच्चों का पहला दिन वैदिक विद्यारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ है. तो आइए हम सभी माँ सरस्वती की आराधना वंदना करते हुए, हमारे गुरुजनों की आराधना वंदना करते हुए, भगवान प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की आराधना वंदना करते हुए हम वैदिक विद्यारंभ आरंभ करें. तो मैं हमारे मंचस्थ हमारे MD मैम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी यदि अनुमति हो तो हम यह आरंभ करें. थैंक यू. तो आप सब लोग एक बार कमर सीधी कर लें और ओमकार का हम लोग 3 बार गहरा श्वास लेकर के गुंजन करेंगे. राइट?
फिर से गहरा श्वास। गहरा श्वास। सभी मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का दोनों हाथ जोड़ करके उच्चारण करेंगे मेरे साथ सामूहिक। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता पिता पूरे अंतर्मन से आशीर्वाद के हाथ उनके सर पर रखेंगे और आशीर्वाद देंगे। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु उत्साह शौर्य धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तरिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। बच्चे दोनों हाथ जोड़ करके अपने माता पिता का आशीर्वाद स्वीकार करें। दोनों हाथ जोड़ लें बच्चे। अब आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश की वंदना करेंगे। हम लोग अपने हाथ में फूल ले लें, भगवान श्री गणेश की वंदना करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथ जोड़ लें और हाथों के बीच में फूल रख लें। फूल और अक्षत बच्चों के हाथ में भी दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरतलोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। खूब प्रेम से, खूब आर्त भाव से भगवान श्री गणेश को वह फूल अर्पित करेंगे, सुपाड़ी पे रखेंगे और भगवान श्री गणेश का हमने आवाहन किया है। हम ये आवाहन, ये भावना करें कि उस सुपाड़ी में भगवान श्री गणेश विराजमान हो चुके हैं। दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान को आर्त भाव से यह निवेदन करें, हमारा बच्चा खूब तरक्की करे और सफलता के ऊंचे पायदान तक पहुंचे। भगवान श्री गणेश को तिलक और अक्षत लगाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
ओम भूर्भुवः स्वः श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपतये नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। ये गंध अक्षत और पुष्प बच्चों के हाथों द्वारा भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं। उसके पश्चात दोनों हाथ जोड़ लें, हाथ में एक पुष्प रखें और माँ सरस्वती का भी हम आवाहन करेंगे। हमारे बच्चों के जीवन में माँ शारदे आए और उसके कंठ पर, उसके जीवन में वह समाहित हो जाए और माँ सरस्वती से हमारा बच्चा ओतप्रोत हो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी प्लेट में वह गंध अक्षत और पुष्प माँ सरस्वती की भावना करते हुए चढ़ा देंगे। हमारे बच्चों का वैदिक विद्यारंभ संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार 16 संस्कारों में से एक आज होने जा रहा है। उसमें हम जिस किसी गुरु को मानते हैं अथवा तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान करके जिसे भी आप गुरु मानते हैं उसका अंतर्मन से ध्यान करके अपने बच्चे के कान में भी उस गुरु का स्मरण करवाएं और अपने हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर सदगुरु का ध्यान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गंध अक्षत पुष्प सदगुरु की भावना करते हुए उस प्लेट पर रख दें। उसके पश्चात आपका बेटा बेटी जिस कलम से आज प्रथम पहली बार कलम उठा करके लिखने जा रहा है उस कलम का भी पूजन करेंगे। तो बच्चों के पास जो उपलब्ध पेन पेंसिल है उसको पूरे आदर के साथ पेरेंट्स माता पिता उठाएं और बच्चों के हाथ से अनामिका उंगली से उसका तिलक लगा करके पूजन करेंगे। उसके बाद मोली से उस कलम को बांधेंगे और उसके पश्चात पुष्प और अक्षत लगा करके कलम का अभिवादन भी करेंगे। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। आप सभी बोलेंगे ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः 11 बार। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। इसके पश्चात बच्चे अपने सर आंखों पर इस पेन पेंसिल को लगाएं और नीचे नहीं रखें, प्लेट के अंदर रखें। उसके बाद नोटबुक का हम पूजन करेंगे। माता पिता अपने साथ में लाए नोटबुक का बच्चों द्वारा पूजन करवाएंगे, खुद नहीं करें, बच्चों के द्वारा पूजन कराएं। और उसमें 5 तिलक करने हैं, चांदले करने हैं। 5 चांदले कैसे करने हैं एक बार यहाँ आप देखेंगे। सबसे पहले नीचे 3 तिलक करने हैं और तीनों के बीच में जो गैप है उनके जस्ट ऊपर थोड़ा सा 2 चांदले और करने हैं आपको। अब माता पिता का रोल आता है। इस नोटबुक में सबसे पहले पिता द्वारा ओम भूः लिखा जाएगा और माता के द्वारा भूर्वः स्वः लिखा जाएगा। भू का मतलब है श्रम, भुवः का मतलब है विवेक और स्वः का मतलब है संयम। इस प्रकार आप सबके नोटबुक पूजन, पट्टिका पूजन जिसे बोलते हैं संस्कृत में, और अक्षर पूजन यह संपन्न होता है। इसके पश्चात आप सभी के पास में A4 साइज का पेपर होगा जिसमें ओम और श्री लिखा होगा। उसे आपके बच्चों के हाथ में
पेंसिल जिनका बच्चों ने पूजन किया है वो पेंसिल पकड़ें, दाहिने हाथ में दे तो अच्छा, बच्चा यदि लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड में भी दे सकते हैं, जैसे भी बच्चे को अनुकूल हो। बच्चों के हाथों से ओम को कॉपी कराएं और फिर बाद में श्री तस्मादश्वा अजायंत जे किचो भयादत गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजभय। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नतेहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आप सबने लिख लिया होगा, बच्चों के द्वारा लिखवा लिया होगा। अब आपके पास में बहुत जल्दी कुमकुम की थाल आएगी, बच्चों के दोनों हाथ से उसको रंगवा के और ओम श्री के जस्ट नीचे बच्चों के हैंड प्रिंट्स करने हैं कुमकुम के द्वारा, हल्दी के द्वारा। बच्चों के हाथों और पैरों की पगलियों का यदि मार्क कर उसे तस्वीर बनाकर किसी दुकान मकान के किसी कोने में उसे लगा दिया जाए तो वह वास्तु दोष तक मिट जाते हैं। शुभ प्रसंग में इसका पूजन कर इसका फायदा लिया जा सकता है। आप सभी इसको लेमिनेट करवा के इसकी तस्वीर बनवा के अपने ऑफिस दुकान या घर में इसे लगा सकते हैं। ये आपके बच्चों के लिए बहुत यादगार क्षण रहेंगे। You are a great part of this fantastic event, all of you. अब हमारे स्कूल की जो नींव है प्रेरणा मूर्ति भारती श्री जी, तो उनका कुछ मैसेज है पेरेंट्स के लिए, वो हम सब मिलके बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि हम 15 दिन के लिए किसी कंट्री में जाते हैं या हम यहीं पर भारत में किसी शहर में जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग वहाँ का वेदर चेक करते हैं, है ना, कि यहाँ गर्मी है तो वहाँ गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितना है। अगर यहाँ का मौसम बहुत रेनी है तो वहाँ कितनी बारिश हो रही, करते हो कि नहीं करते हो। और उसी के हिसाब से अपनी बैग पैक होती है ना। 15 दिन के लिए जिस टूर पर आप जाते हैं, यदि वहाँ का भी प्लानिंग करते हैं, 90 साल से ज़्यादा ये बच्चा आपकी संपत्ति है, क्या उसके लिए आपको प्लान नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। तभी आप सच्चे माता पिता। बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, जितने 6 घंटे स्कूल में गया आपकी जिम्मेदारी का बोझ खत्म हो गया ना। 6 घंटे से ज़्यादा बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। कौन सा अत्याचार? 2.5 साल की उम्र, जब उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जब वार्म उसे एक टच की ज़रूरत है जो माँ दे सकती है, हमने उसको माँ से और पिता से अलग करके हमने कुछ बनाने के लिए स्कूल भेज दिया। बेचारा बहुत रोया, मम्मा मुझे नहीं, मम्मी। आप सबका ये एक्सपीरियंस है। और फिर भी हमने कठोर हृदय करके अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया, ठीक है। और हमने ये सोचा कि अब जो करेगी वो टीचर करेगी ना, जो करोगे वो आप करोगे। इंस्टेड आपको टीचरों को सहायता करनी चाहिए। आपको और टीचर्स का इतना बॉन्ड तगड़ा होना चाहिए कि आपको फिक्र होनी चाहिए कि टीचर मेरे बच्चे में ये कमियां हैं, आप और हम दोनों मिलकर इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप देखोगे कुछ सालों के बाद ये घास निकलकर आपका बच्चा फूल की तरह चमके नहीं तो मुझे कहिएगा, पर उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जय श्री कृष्णा। वंडरफुल मैसेज बाय श्री CMD मैम। आप अगर उनकी एक बात को भी अपना लेंगे जीवन में तो आपके बच्चों के प्रति आपके जो कंप्लेंट्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा समय अपने बच्चों को, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन योर चिल्ड्रंस,
आप जैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, यस और नो फादर्स, आप अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपना धन बढ़ाने के लिए, एक अच्छा स्टेटस लाने के लिए, वैसे आपके बच्चे आपका भविष्य है। तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए। हमारे घर का वातावरण अगर सुखमय, शांतिमय और आनंदमय रहेगा तो बच्चे बाहर अट्रैक्ट कम होंगे। इसलिए माता पिता दोनों से निवेदन है कि आप अपने घर का वातावरण, जो भी इंटरनल बात है, आप बच्चा नहीं हो तब शांति से बात कर सकते हैं, बट आपका व्यवहार जैसा होगा बच्चे आपको एज इट इज़ फॉलो करेंगे। सो प्लीज़ पेरेंट्स, सब लोग इस छोटी सी बात का, इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे सब लोग, यस और नो? आप लोग मेरे साथ हो इस बात में? सो थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी वंडरफुल पार्ट। आज का जो इवेंट है वो आपके लिए मेमोरेबल रहेगा हमेशा। मैं आप सबकी ओर से हमारे CMD मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ, MD मैम का आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि आपने बहुत प्रेम पूर्वक, धैर्यपूर्वक इसे सुना। हमारे CMD मैम पिछले 5 सालों से ये वैदिक विद्यारंभ इस स्कूल में चल रहा है। पिछले 4 बैच जो निकले उनमें सब ने यह संकल्प लिया है, जिस संकल्प को आज हम फिर से दोहराएंगे। तो सभी कमर सीधी कर लें और पूरे हृदय से इस प्रतिज्ञा को मेरे पीछे आप लोगों को दोहराना है। मैं माता पिता होने के कर्तव्य से कभी च्युत नहीं होऊंगा। मेरा बच्चा जब कभी घर से निकले मैं उसे याद दिलवाऊंगा, मेरे पैर छूकर जा, घर में बड़ों के पैर छूकर जा। मैं इस वचन से बद्ध हूं। अध्ययन जारी रखें स्वयं के मानसिक विकास के लिए। 10th क्लास से पहले मैं अपने बच्चों के हाथ में कभी मोबाइल नहीं दूंगा, यह संकल्प है। शिक्षक पूजन बाकी रहा जी। महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you very much. A round of big applause for this event today.